Hello, good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I'm taking the lecture of Operation Research. Right. So, in the series of the previous lectures of the Operation Research, we discussed the various basic techniques or the methods about the transportation problems. Right. For the for finding the initial basic feasible solutions, we are learn the three different technique, which is the northwest corner method, least corner methods, and the last, which is the Vogel approximations method. And after that, we also study the two different cases. The one problem which is related to unbalanced problem of the transportation problem, and the another in the last previous lecture, I teach you one another aspect of the transportation problem with the maximization problem, right? If you see the last video of my lecture, I will explain the uh, maximization transportation problem, how to convert the maximization transportation problem into minimization transportation problem, and then we can solve the same problem with the given method, like the northwest, least cost, and the WEM method. After that, I also start the another technique of the to find out the optimal solutions of the transportation problem, right? As we discuss in the previous our talk, for find out the for finding the initial uh, after finding the initial basic solutions, we can also find the optimal, that is the word which is very close to the most accurate solution of the transportation flow. So we can find out the optimal solutions with the two basic method, the first, which is the stepping stone method, and second, which is the Modi method, right? In the last video lecture, we try to learn about the stepping stone methods. In the stepping stone methods, we are just focusing for solve the stepping for finding the optimal solution with the stepping stone method. We need some initial basic feasible solutions from previous methods, right? And after that, we are focusing only on the unoccupied cell. We are only focusing on the unoccupied cell. In cell, there is no allocations. We are focusing on the unoccupied cells and try to find the optimal solutions with the stepping stone method. So in today's lecture, we start the discussions on the Modi methods, right? So now, what is the basic difference between the Modi and stepping stone? We can try to understand with the basic theory about the Modi method. The Modi method, which is also known as a UV method, right? The Modi method, which is also known as a UV method, and the full name of the Modi method, which is the modified distributions method. So how the solution we can get with the Modi method is like that. In this method, the cell evolutions of all the unoccupied cell in for the cell evolutions of all unoccupied cells are calculated simultaneously. अब जो ये पहला डिफरेंस अभी जो मैं आपको बात कर रहा था ना, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस अबाउट द स्टेपिंग स्टोन एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस अबाउट द Modi method is that, so what happened in the stepping stone? In stepping stone, we are focusing on the occupied cell, right? We are focusing on the occupied cell, and one by one we are try to solve. One by one we are try to focus on the every unoccupied cell, right? Now what happened in the Modi method? In Modi method, we simultaneously एक साथ हम लोग क्या करेंगे, जितने भी सारे जो अनऑक्यूपाइड सेल है उसको एक लूप बना के उसका एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है जो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. एंड द ओनली वन क्लोज पाथ फॉर द मोस्ट नेगेटिव सेल इज टू बी ट्रेस्ड. अगर उसमें कोई नेगेटिव वैल्यू जो आती है वो हमें फाइंड आउट करके वहाँ से अपना पाथ जो है वो चेंज करने की वहाँ पे ट्राई करना है हमें. Thus, it is provide a considerable saving over the stepping stone method. यानी ये जो है वो
स्टेपिंग स्टोन मेथड के ऊपर जो है वो हमें एक ज़्यादा एक बेसिक बेनिफिट देगा. तो फॉलोइंग आर द स्टेप्स विच इज़ इन्वॉल्व इन द मोदी मेथड. नाउ वी आर try to discuss about the steps of the Modi method. Now what is happening in this step, what is happening in the Modi method? The step 1, which is the set up the cost matrix for those cell for allocated cell. आपको एक पूरा एक मैट्रिक्स बनाना है जिसके अंदर एलोकेटेड सेल है. वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, स्टेपिंग स्टोन में जो अनएलोकेटेड सेल थे उसके ऊपर फोकस कर रहे थे. नाउ वी आर फोकसिंग ऑन दी एलोकेटेड सेल इन दी मोदी मेथड. Now step 2. What is the steps 2? We have to introduce the dual variable. यहाँ पे हमें दो वेरिएबल है इसके अंदर ऐड करने हैं, राइट, which is corresponding to the supply and demand constraints, right, which is corresponding to the supply and demand constraint. Let 1 2 3 which is m and जो एक होगा ना वो अपना u होगा, राइट, एक जो होगा वो डिमांड के साइड होगा which is 1 2 3, एक होगा वो अपना j होगा which is side of the supply which is the n number of variable. जितने हमारे डिमांड हो गए उतने वेरिएबल हमें एक साइड देने हैं, जितना अपना सप्लाई होगा उसने एक यूवी तरीके से हमें इसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करने की ट्राई करनी है. द ड्यूअल वेरिएबल विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द सप्लाई डिमांड कंस्ट्रेंट्स. नाउ द वेरिएबल यू आई एंड वी जे आर सच दैट so ui plus vj is equal to cij, which is arbitrarily select dual variable as 0 as find the other dual variable. Now apply above steps on the matrix which is given below. अब ये जो जैसे आपका uv हो गया उसको आपको मैट्रिक्स के अंदर वहाँ पे अप्लाई करना है. कैसे करोगे, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है जिसके अंदर जो है वो कुछ आप देखोगे तो 3x3 का आपको मैट्रिक्स दिख रहा है. नीचे समान नीचे आपको डिमांड दी गई है, एक राइट हैंड साइड के ऊपर सप्लाई दिए गए. आपको चेक करना है कि प्रॉब्लम बैलेंस डिमांड सप्लाई से बैलेंस है. जैसे ये चीज़ हो गई आपको और इसके ये मैट्रिक्स के अंदर ये टेबल के अंदर अनऑक्यूपाइड एंड ऑक्यूपाइड दोनों तरीके से आपको सेल दिए गए हैं. यानी ये चीज़ आपको पहले समझनी होगी कि मोदी मेथड से आपको अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ना तो बेसिक चीज़ क्या चाहिए, तो कि मोदी मेथड हम लोग तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास प्रीवियस 3 मेथड से यानी वैम हो गया, लिस्ट कोस्ट हो गया और अपना नॉर्थ वेस्ट हो गया, उससे हमें सॉल्व किया हुआ एक बेसिक इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन हमें पहले चाहिए. अगर वो होगा तो उसके अंदर जो है वो हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. यानी ऑप्टिमल से हम लोग क्या बता सकते हैं कि जो हमने प्रीवियसली जो बेसिक सॉल्यूशन फाइंड किया था वो ऑप्टिमल था या फिर इससे ऑप्टिमल होने के चांसेस हैं. अगर चांसेस है तो फिर हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, वरना जो है ऐसा भी चांसेस हो सकते हैं. ऐसा भी नहीं है कि जो आपने सपोज कि वैम से किया था वो बेसिक था यानी अब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. ये ऑप्टिमम भी हो सकता है और इसके आगे भी पॉसिबिलिटीज़ है, इसको और ऑप्टिमम हम लोग कर सकते हैं. सो जैसे ही हमने ये डिस्कस किया कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स के अंदर अब आपको ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड दोनों चीज़ आपको दिख रही है, दोनों सेल्स दिख रहे हैं. अब आपको वहाँ पे क्या चीज़ करनी है, आपको एक नीचे और एक टेबल बनाना है और उस टेबल के ऊपर जो है वो आपको जो रो साइड है, रो साइड वहाँ पे आपको u1 u2 u3 वेरिएबल लिखने हैं और आपको जो ऊपर वाला जो टॉप ऑफ द टेबल होगा वहाँ पे जो है वो v1 v2 और v3 लिखना है. क्योंकि ये जो पूरा टेक्निक है ना वो हम लोग मल्टीप्लिकेशन से यूवी टेक्निक से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. अब टेबल के अंदर जो आपका जो सेल थे उस सेल के अंदर आपको कौन से सेल जो है वहाँ पे इनपुट करने हैं. जो सेल आपको ऊपर वाले सेल के अंदर ऊपर वाले टेबल के अंदर जो ऑक्यूपाइड सेल दिख रहे थे ना, ऑक्यूपाइड जिसके साथ कुछ एलोकेशन वाले नंबर थे, वो नंबर जो है वो आपको लेना है और नीचे वाले मैट्रिक्स में लिखना है. तो आप देखोगे कि मैंने जो बी डी था वो 3 लिखा है, सी डी था वहाँ पे 6 लिखा है, फिर
मेरा CE था वहाँ पे मैंने 2 लिखा है, फिर मेरा AF था वहाँ पे 1, BF था वहाँ पे 3। तो मैंने जो भी मेरा सेल थे वो एलोकेटेड थे प्रीवियसली, वहाँ पे मैंने उस न्यू टेबल के अंदर, न्यू मैट्रिक्स के अंदर मैंने लिखा है। अब उसके साथ मैंने क्या किया, UV जो सॉल्यूशंस थे वो लिखे। अब U और V का मल्टीप्लिकेशंस करना है, तो आप सपोज देखें तो आपको पहले रो से स्टार्ट करना है। U1 हो जाएगा, U1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, U1 पहले रो में V3 के एलोकेशंस आपको दिख रहा है। सो U1 प्लस V3 के अंदर आपका एलोकेशन दिख रहा है ना, 1 रो 1 कॉलम इज इक्वल टू 1 एलोकेशन है उस लाइन के अंदर, राइट। फिर आपके दूसरे लाइन में चले जाएंगे तो आप चले जाएंगे U2 प्लस V1 विच इज इक्वल टू 3, राइट। फिर U2 प्लस V3 इज इक्वल टू 3। देन नेक्स्ट हो जाएगा आपका U3 प्लस V1 इज इक्वल टू 6। देन नेक्स्ट आपका लास्ट वाला हो जाएगा U3 प्लस V2 इज इक्वल टू 2। यानी जो सारे जो थे मैंने UV से एक इक्वेशन, 5 इक्वेशन बना लिए, राइट। अब ये इक्वेशन बना लिए। अब उसके बाद मुझे क्या चीज़ देखनी है, उसके बाद मुझे ये चीज़ देखनी है कि कोई एक U और V में से जहाँ पे सबसे ज़्यादा एलोकेशन किस रो के अंदर है। तो आप देखिए मेरा जो U1 है, U1 वाला जो रो है उसके अंदर एक एलोकेशन दिख रहा है, एक वो रो के अंदर एक अभी आपका जो सेल है वो फिल दिख रहा है। U2 रो के अंदर 2 सेल जो है वो फिल दिख रहा है। U3 के अंदर आपके जो है फिर से 2 सेल जो है वो फिल दिख रहे हैं। अब ये चीज़ जैसे हो गई, उसके बाद आपको क्या चीज़ करना है कि जो भी रो के अंदर सबसे ज़्यादा सेल जो है वो आपको फिल दिख रहा है, उसमें से एक को सिलेक्ट करके आपको उस रो इज इक्वल टू वहाँ पे 0 जो है वो आपको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा U2 जो रो है उसके अंदर भी दो एलोकेशन है, यानी वहाँ पे भी 2 है। U3 के अंदर भी 2 है। फिर मैं देखूँगा U2 है उससे ज़्यादा एलोकेशन मुझे U3 रो के अंदर दिख रहा है, राइट। अब तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो सारे ये इक्वेशंस हो गए उसके जनरेट हो जाने के बाद मैं U3 जो है, U3 इज इक्वल टू, मैंने 0 अभी एज्यूम कर लिया, U3 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो मेरे पास ये 5 इक्वेशंस दिख रहे हैं। अब आपको जहाँ पे भी U3 दिखेगा ना, U3 वहाँ पे आपको क्या चीज़ करनी है, U3 जो दिखेगा तो आपको चीज़ क्या करनी है, वहाँ पे U3 इज इक्वल टू 0 लिख देना है। जो आप 5वां इक्वेशन देखोगे, 5वां इक्वेशन जो है मेरा बन रहा था कि U3 प्लस V2 इज इक्वल टू 2। तो U3 जो है वहाँ पे मैंने 0 लग दिया, राइट। सो 0 प्लस V2 इज इक्वल टू 2, यानी V2 इज इक्वल टू आपका 0 है जो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी तो V2 आपका हो जाएगा 2। अब दूसरा मुझे U3 कहाँ पे दिख रहा है, तो U3 और एक जगह मुझे दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, तो कि U3 प्लस V1 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे भी मैं क्या चीज़ करूँगा कि U3 जो है वहाँ पे मैं 0 रख दूँगा, 0 प्लस V1 इज इक्वल टू 6। सो V1 इज इक्वल टू 6, यानी और मुझे 2 वैल्यू मिल गई यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करते हुए। आपको V1 मिल गया और V2 मिल गया। अब आपको जहाँ भी इक्वेशन में V1 और V2 दिखेंगे, राइट, V1 और V2 आपको जहाँ दिखेंगे वहाँ पे आपको क्या चीज़ करनी है, क्या करना है, आपको वहाँ पे ये इसकी वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है। तो जैसे ही आप वैल्यू वहाँ पे पुट करोगे तो आपको जैसे जैसे इक्वेशन सॉल्व करते जाओगे तो आपके सारे इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो आपके जैसे ही सारे इक्वेशन सॉल्व हो गए तो उसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो स्टेप होगा वो नेक्स्ट आपको ऊपर एक टेबल दिख रहा है। मैंने क्या किया कि एक टेबल आपको दिख रहा है, जैसे मुझे सारी वैल्यू मिल गई, जैसे मुझे आप देखोगे तो U1 इज इक्वल टू -5 मिले, U3 इज इक्वल टू -3 मिले। U3 तो मैंने पहले से 0 एज्यूम करके रखा था। फिर अपना हो गया V1 में मुझे 6 मिले, V2 में मुझे 2 मिले, V3 में मुझे 6 मिले। तो वो सारी वैल्यू मैंने रख दी। अंदर के जो एलोकेशंस वाले वैल्यू थे वो अभी सेम टू सेम वैल्यू है। अब मुझे
इसका फाइनल सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है। सो इसके बाद वाला जो स्टेप है आप पढ़ोगे तो आपको दिख रहा है फाइंड आउट द इम्प्लिसिट कोस्ट। आपको अब इम्प्लिसिट कोस्ट फाइंड आउट करनी है। द इम्प्लिसिट कोस्ट इज द समेशन ऑफ द ड्यूअल वेरिएबल which is the summations of the dual variable of row and column for each unoccupied cell, which is the u1 plus vj, right? ui plus vj. Then the vacant cell evaluation is carried out by taking the difference of सच अनऑक्यूपाइड सेल। अब जो अनऑक्यूपाइड सेल है उसके लिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशंस हैं। सो अनऑक्यूपाइड इवैल्यूएशंस ऑफ द सेल, इवैल्यूएशन ऑफ द सेल इज इक्वल टू सी आई जे माइनस, ये जो इक्वेशन है ना आपको याद रखना पड़ेगा, सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे, राइट। यानी ये चीज़ आप क्या हो जाएगी, आपकी ये चीज़ हो जाएगी आपका u1 प्लस v1। अब अनऑक्यूपाइड जो सेल थे जिसके अंदर ऑक्यूपेशंस अभी नहीं है, तो उस चीज़ को हमें फोकस करना है। तो हमें प्रीवियसली जाना पड़ेगा कहाँ पे, जो अनऑक्यूपाइड सेल थे। तो अनऑक्यूपाइड आप पहला देखो कि पहला मेरा अनऑक्यूपाइड था ए डी अनऑक्यूपाइड था। तो जहाँ पे 4 नंबर लिखा है तो मैं लिखूँगा सी आई जे इज इक्वल टू 4 माइनस u1 प्लस, या ये जो आ रहा है ना 4, तो 4 कहाँ पे है, तो 4 के साथ रिलेट कौन हो गए, u1 होगा और v1 होगा। तो यहाँ पे हम लोग u1 और v1 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एक आंसर मिलेगा, राइट। जैसे ही आंसर मिल जाएगा वो हमें पता करना है। फिर दूसरा अनऑक्यूपाइड हो जाएगा अपना ए ई। तो ए ई में जो सी आई जे है वो कितना है 5, तो मैं दूसरा रखूँगा 5 माइनस, तो 5 की वजह यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कौन आएगा, यू आई प्लस वी 2, यानी -5 प्लस 2। फिर इसका आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर और एक आपका अनऑक्यूपाइड हो जाएगा, अनऑक्यूपाइड में बी ई हो जाएगा, बी ई में है 4। तो ऐसे जो भी सारे अनऑक्यूपाइड जिसके अंदर एलोकेशन नहीं है, अनएलोकेट जो सेल है, वहाँ पे आपको इस इक्वेशन से आपको उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर आपने ये इक्वेशन से सॉल्व करते हुए जितने भी अनएलोकेटेड सेल थे उसका सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट कर लिया, राइट। उसका सॉल्यूशन आपने जैसे ही फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद आपको अगर ये इक्वेशन के जो आंसर आ रहे हैं, जितने आपने अनऑक्यूपाइड के लिए आंसर फाइंड आउट किए ना, ये सी आई जे वाले वैल्यू पुट करके, राइट, उसमें अगर कोई एक आंसर जो है वो नेगेटिव आता है तो फिर यहाँ पे एलोकेशन फिर से करना पड़ेगा। अगर ये जो सारे जो सेल है, जो इवैल्यूएशंस अभी आपने इवैल्यूएशंस हमने फाइंड आउट किए अनएलोकेटेड से, वो सारे पॉजिटिव आते हैं, तो ये जो आपके पास जो सॉल्यूशन था ना, ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन था, ये हम लोग बोल सकते हैं, राइट। ये चीज़ हमें यहाँ से पता चल गई थी। तो ये था, ये जो था ये पूरा प्रोसेस था मोदी मेथड के बारे में। अब जैसे ये मोदी मेथड के बारे में आपका मैंने प्रोसेस पूरा कैसे जो सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, राइट। अब ये आपके सामने पूरा एक क्वेश्चंस मैं रख रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करने का ट्राई करना है, राइट। आपके पास आपके सामने दिख रहा है एक टेबल दिख रहा है, टेबल के अंदर जो है वो F1 to F4 वैल्यूज़ है, ऑपोजिट साइड जो है वो M1 to M4 है, डिमांड और सप्लाई दिए गए हैं। पहले तो वो आपको चेक बैलेंस चीज़ करनी है, और उसमें जो क्या चीज़ ऊपर जो प्रॉब्लम में क्या किया है, फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद द वैम मेथड फॉर फाइंड आउट द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। आपको ये प्रॉब्लम के अंदर आप देखोगे वहाँ पे पढ़ोगे तो आपको दिख रहा है, राइट। पहले वैम मेथड्स को यूज़ करके आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, फिर उसका उसी प्रॉब्लम के अंदर आपको वैम से सॉल्यूशन जो है, सॉरी मोदी से जो है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। सो फर्स्ट स्टेप रिगार्डिंग टू implement the WAM method is you have to check the demand if your problem is in the balance conditions or unbalanced condition। तो मैं डिमांड और सप्लाई का टोटल करूँगा 30 + 20 50, और यहाँ पे मेरा 50 और 25 और 50 50, यानी मेरे 100 हो गए, राइट। यहाँ पे आप चीज़ देखोगे तो 20 फिर
40 60 60 और ये 25 और 15 मिला के 40, यानी 60 और 40 100, यानी प्रॉब्लम जो है मेरा बैलेंस कंडीशन के अंदर है। तो अब यहाँ पे मुझे क्या चीज़ करनी है कि इस प्रॉब्लम के अंदर मैंने जैसे वैम से सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, तो आपके सामने जो है वो अभी क्या चीज़ दिख रही है कि एलोकेशन, एक बार मुझे इनिशियल जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन था उससे मैंने एलोकेशन करके मुझे एक टेबल आपके सामने दिख रहा है। ये वैम कर रही है, यहाँ मैंने जो है वो वैम यूटिलाइज़ कर लिया है। अब आपको वैम कैसे यूज़ करना है वो मैंने पहले सिखा दिया है, राइट। अभी बुक के अंदर जो अभी आपके सामने स्क्रीन के अंदर दिख रहा है ना, वो स्क्रीन के अंदर सिर्फ वैम का जो सॉल्यूशन वाला पोर्शन है ना, वो सॉल्यूशन वाला पोर्शन ही आपके सामने दिख रहा है। और जैसे ही मैंने वैम से सॉल्यूशन किया तो आप देखोगे उसके नीचे लिखा है द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ 210 रुपीज़। यहाँ पे आपको 210 रुपये जो है वो वैम से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिला था। अब जैसे ही वैम से सॉल्यूशन हो गया तो उसी प्रॉब्लम को आपको किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब आप देखोगे तो काफ़ी सारे आपको गिवन टेबल्स के अंदर ऑक्यूपाइड एंड अनऑक्यूपाइड सेल दोनों चीज़ दिख रही है। तो अब आपका ये मोदी मेथड है, राइट, ये मोदी मेथड है। तो आपका अब फोकस रहेगा, वो फोकस किस पे रहेगा, तो कि जो अब यहाँ पे मेरा जो अब फोकस रहेगा दैट इज़ दी ऑन दी ऑक्यूपाइड सेल। अब ऑक्यूपाइड जो भी होगे ना उसके ऊपर से हम लोग यूवी जो है वो टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही मैंने मोदी मेथड स्टार्ट कर दिया तो मैं अब फोकस करूँगा जो भी मेरे पास टेबल है। तो मैंने 4x4 का एक टेबल बना लिया। 4x4 के टेबल में मैंने U और V, U1 U2 U3 और U4, इसी तरह से ऊपर मैंने V1 V2 V3 और V4 लिख दिया। अब इस टेबल के अंदर 4x4 टेबल के अंदर मैं ऊपर वाले टेबल से वो सेल जो है वहाँ पे कॉपी कर दूंगा जो जिसके साथ एलोकेशन था, यानी ऑक्यूपाइड सेल थे। तो ऑक्यूपाइड सेल मैंने कॉपी कर दिया। तो आप देख लीजिए 2 3 जो है वो फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड कॉलम में 4 और 3, थर्ड कॉलम के अंदर 1, और जो मेरा फोर्थ कॉलम है उसके अंदर 1 और 3, यानी इतने जो है वो एलोकेट थे। अब ये एलोकेट थे, उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, वो नेक्स्ट स्टेप क्या चीज़ हो जाएगा मेरा कि मुझे किसी के लिए जो है वो ज़ीरो जो है, किसी एक रो के लिए मुझे ज़ीरो जो है वो एज्यूम करना है। अब ज़ीरो एज्यूम करने के लिए सबसे बड़ा जो कंडीशन होता है वो कंडीशन कौन सा है, आपको ये चीज़ देखनी होगी कि किस रो के अंदर सबसे ज़्यादा एलोकेशन आपको दिख रहा है। तो पहला रो मैंने U1 वाला रो देखा तो U1 के अंदर एक एलोकेशन दिख रहा है। U2 रो के अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर जो है वो मुझे 3 एलोकेशन दिख रहे हैं, राइट, 3 ऑक्यूपाइड सेल दिख रहे हैं, राइट। अब U3 के अंदर 1 है, U4 के अंदर 2 है। अब ये जो हमारा टर्म एंड कंडीशन है, ये रूल्स क्या चीज़ कहता है कि जिस रो के अंदर सबसे ज़्यादा एलोकेशन आपको दिख रहा है उस रो का वेरिएबल जो है वो आपको ज़ीरो एज्यूम करना है। यानी अब मैंने यहाँ पे U2 इज इक्वल टू 0 डिक्लेयर कर दिया। अब U2 इज इक्वल टू 0 जैसे मैंने एज्यूम कर लिया तो अब मेरे पास जो काफ़ी जो इक्वेशंस बनेंगे, राइट। अब U1 V1 वाले इक्वेशंस मेरे पास है। आप देखोगे कि U1 प्लस V4 इज इक्वल टू 1, ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर दूसरा इक्वेशन कौन सा होगा कि U2 प्लस V1 इज इक्वल टू 2, U2 प्लस V2 इज इक्वल टू 4, U2 प्लस V4 इज इक्वल टू 3, यानी ये मैंने दूसरी रो के लिए बनाए। फिर थर्ड के लिए U3 प्लस V1 इज इक्वल टू 3, नाउ U4 प्लस V2 इज इक्वल टू 3, नाउ U4 प्लस V3 इज इक्वल टू 1। तो ये सारे मेरे इक्वेशन बन गए। अब ये जो सारे इक्वेशन बने ना, उस इक्वेशन के अंदर जहाँ पे आपको U2 दिखेगा उसकी जगह पे आपको 0 रख देना है। अब 0 रखोगे तो आपको और सारी जो वैल्यू जो वैल्यू आपको अभी तक पता नहीं है वो सारी वैल्यू आपको पता चल जाएगी। यानी आप सारे जो है वो U1 V1, U2 V2, U3 V3 और U4 V4 जो है वो आपको मिल जाएंगे। अब जैसे ही आपको सारे मिल जाएंगे तो मैंने क्या किया, जो भी आंसर मिले ना वो मैंने U1 और U1 टू U4 और V1 टू V4 की जगह पे मैंने रख दिए। अब वो जैसे ही रख दिए उसके बाद मुझे क्या चीज़ करनी पड़ेगी, उसके बाद मुझे चीज़ करनी पड़ेगी कि अनऑक्यूपाइड जो सेल थे
वो अनऑक्यूपाइड सेल के ऊपर मुझे जाना पड़ेगा। अनऑक्यूपाइड सेल जो है जिसके अंदर एलोकेशन बिल्कुल नहीं था, यानी अब मुझे यहाँ पे फोकस करने का, आप देखोगे जो फर्स्ट ऊपर वाला जो टेबल है, ऊपर वाले आपको टेबल में दिख रहे हैं जिसके साथ एलोकेशन नहीं है, वो टेबल के अंदर अब फोकस करेंगे हम लोग, राइट। यानी कि आप देखिए F1 M1, F1 M2, F1 M3, પછી F2 M3, F3 M2, F3 M3, F3 M4, F4 M1, F4 M4, ये जो सारे हैं जिसके साथ एलोकेशन नहीं थे, उसको हम लोग इवैल्यूएशंस ऑफ सेल के प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। अब वो सारे सेल जो है वो आपको इवैल्यूएशंस में जाना पड़ेगा, और इवैल्यूएशंस के लिए आपके पास इक्वेशन क्या था, तो इवैल्यूएशंस के लिए आपके पास इक्वेशन था CIJ माइनस UI प्लस VJ, यानी ये सारे जो है उसके लिए आपको वहाँ पे ये सारे के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। आप जैसे ही सारे सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा, आपको अगर कोई एक वैल्यू जो है वो सॉल्यूशन के अंदर सारी वैल्यू जो है पॉजिटिव मिल रही है, दैट इज़ ऑप्टिमम सॉल्यूशन। पर अगर कोई एक वैल्यू जो है वो आपको नेगेटिव मिल रही है, राइट, तो आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखिए थर्ड रो के अंदर, थर्ड रो और थर्ड कॉलम जहाँ पे मिक्स हो रहे हैं, थर्ड रो थर्ड कॉलम जहाँ पे मिक्स हो रहे हैं वहाँ पे -1 लिखा है, राइट, टेबल के अंदर। यानी एक जो चीज़ थी वहाँ पे आपको एलोकेशन जो इवैल्यूएशन ऑफ सेल आपने जब फाइंड आउट किया ना, उस कंडीशन पे आपको एक जो से वो वैल्यू माइनस मिली थी, तो आपको ऊपर वाले टेबल में जाना पड़ेगा। ऊपर वाले टेबल के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वहाँ पे आपको अब यहाँ से सॉल्यूशन डिफरेंट हो जाएगा। जहाँ पे आपको जो है वो नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव क्या कहाँ पे मिली हमें, यानी नेगेटिव जो हमें वैल्यू मिली है वो आप फोकस करिए U3 V3, यानी U3 यानी अपना यहाँ पे F3 M3, यहाँ पे जो 2 नंबर वाला सेल है, 2 नंबर वाला सेल, राइट, उसके अंदर हमें नेगेटिव वैल्यू मिली, तो वहाँ पे हमें एलोकेशन करना पड़ेगा। अब एलोकेशन किस चीज़ से करेंगे, तो आपको एलोकेशन किस नंबर से करना है, उस नंबर से एलोकेशन करना है जो आपका टेबल के अंदर जो सबसे छोटा एलोकेशन है। तो सबसे छोटा एलोकेशन कहाँ पे दिख रहा है आपको, 5 नंबर का एलोकेशन है वो सबसे छोटा एलोकेशन दिख रहा है। यानी जैसे ही मैंने स्टार्ट कर दिया 5 नंबर का एलोकेशन मैंने 2 नंबर के बाजू में दिया, राइट। तो आपको जो हम लोग पहले करते थे ना प्लस और माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ऐसा करना पड़ेगा। 5 का एलोकेशन दोगे वो तो सारे डिमांड और सप्लाई आपके चेंज होते जाएंगे। तो जैसे ही मैंने 5 नंबर का एलोकेशन 2 के साथ दिया तो मुझे नीचे 20 के साथ जो है वो माइनस करने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने 5 का एलोकेशन 2 के साथ किया तो वहाँ पे जो मेरा क्या सेल था, एक के साथ जो 25 थे वो एक के साथ मुझे 20 करने पड़ेंगे। तो आप एक के साथ 20 देखोगे, राइट। इस तरीके से आपको जो लोकेशन जो आपको एग्जिस्टिंग थे वो एग्जिस्टिंग के अंदर एक को आप प्लस करोगे, एक को आप माइनस करना पड़ेगा, एक को आप प्लस करोगे, एक को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो पूरा एक तरीके से वो लूप बनेगा आपका। 2 के अंदर आपने जैसे ही एलोकेशन किया तो वो पूरा आपका लूप बनेगा। उस तरीके से आपको पूरा उसको चेंज करते जाना है। 2 में जैसे आपने 5 का एलोकेशन किया राइट, उस तरीके से आपने जैसे ही एलोकेशन कंप्लीट कर दिया उसके बाद आपको फिर से CIJ आपको फाइंड आउट करना है, राइट। जो भी अनऑक्यूपाइड हो गए, अब उस अनऑक्यूपाइड के ऊपर फोकस करके वहाँ पे आपको फिर से एक बार फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि आपके जो CIJ अभी मिल रहा है वो पॉजिटिव मिल रहा है कि नहीं, नेगेटिव मिल रहा है। आप ये प्रोसेस आपको कहाँ तक करना है, या वहाँ तक ये प्रोसेस आपको लूप बनाने वाली प्रोसेस वहाँ तक आपको करनी है जहाँ तक आपका जो इवैल्यूएशंस ऑफ सेल जो है, यानी आप लास्ट में जो कर रहे हो ना जो भी अनऑक्यूपाइड है उसके साथ,
राइट, वो जहाँ तक आपका पॉजिटिव नहीं आ जाता वहाँ तक आपको करनी। सपोज आपको 5 से नहीं हो रहा है तो फिर आपको एक एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा, यानी 5 से बड़ा एलोकेशन। आप देखोगे तो एग्जिस्टिंग एलोकेशन था वो 5 था, यानी 5 से फिर इन लोगों ने एलोकेशन करने की कोशिश की पूरा लूप बनाने की, तो फिर सॉल्यूशन अभी भी नहीं मिल रहा है। तो फिर क्या किया, वही सेम चीज़ क्या किया कि 5 की बजाय उन्होंने पसंद किया 10, एक एलोकेशन को ज़्यादा, 5 से एक एलोकेशन एक स्टेप ऊपर चले गए। अब 10 नंबर उन्होंने सिलेक्ट किया, 10 नंबर उन्होंने सिलेक्ट किया, तो उसके बाद जो था वो एलोकेशन फिर चेंज किया। अब जहाँ पे नेगेटिव आया था वहाँ पे आपने 10 नंबर का एलोकेशन किया, तो 10 नंबर का एलोकेशन किया तो उसके आजू बाजू जो है वो आपको जैसे लूप बनता जाएगा, ए प्लस करेंगे तो आपको नीचे या फिर साइड में -10 करना पड़ेगा, फिर प्लस करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा, फिर प्लस करना पड़ेगा। इस तरीके से पूरा एक आपको जहाँ से स्टार्ट किया था फिर वहीं से आके फिनिश करना है। ऐसा एक पूरा लूप बनाना है। जैसे आप लूप बनाओगे फिर आपको CIJ फिर से फाइंड करना पड़ेगा। जैसे ये क्लिप आपका खत्म हो गया फिर आपको CIJ फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे आपको CIJ फाइंड आउट करोगे, अगर वो पॉजिटिव आ गया देन इट इज़ द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अगर फिर से वो नेगेटिव आता है तो फिर आपको एक रिवाइज एलोकेशन के अंदर जाएगा, 10 से एलोकेशन एक बड़ा हो जाएगा, आपको 15 का एलोकेशन करके आपको देखना है, राइट। और आपको ये प्रोसेस तब तक करनी है जब तक आपके जो एलोकेशंस थे, इवैल्यूएशंस ऑफ द सेल था, वो पॉजिटिव ना आ जाए, राइट। जैसे ये पॉजिटिव मिल जाएगा तो आपको अब देखोगे तो ये जो था वो आपका अब एलोकेशन 10 के एलोकेशन करने से आपका क्या मिल रहा है, अब 10 वाले एलोकेशन करने से आपका जो एलोकेशन था वो पॉजिटिव मिल रहा है। अब उसके बाद हमने इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड आउट किया, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें मिला 205 रुपये। अब जैसे वैम से हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किया था, तो आप देखोगे वैम से अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 210 रुपये में ट्रांसपोर्टेशन किया था। तो जैसे ही हमने मोदी मेथड अप्लाई किया तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था वो कम हुआ और ऑप्टिमम हुआ, यानी इससे हमने जैसे ही फाइंड आउट किया तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हुआ। इस तरीके से हम लोग मोदी मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यही प्रॉब्लम जो है ये आपको अपने घर पे बैठ के आपको सॉल्व करने की कोशिश करेगी। आप सॉल्व करिएगा तो थोड़ा थोड़ा आपको पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ बोलना चाहता हूँ, राइट। फिर भी अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम में अगर कोई डिफ़िकल्टीज आ रही है तो फिर आप मुझे वहाँ पे कमेंट सेक्शंस के अंदर पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। साथ में जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए जो एग्जांपल दिए गए वो एग्जांपल सारे बच्चों को प्रैक्टिस करके अपने फेयर बुक में कैलकुलेट करने हैं, राइट। मैं किसी भी बच्चे को रैंडमली पसंद करके 16 तारीख को एक किसी भी बच्चे से मैं अपना उसका जो है वो असाइनमेंट फ़ोन पे मैं मेल करवाऊँगा। उसको बात करके आपको मुझे मेल करना पड़ेगा, राइट। जिसको मुझे मैं आपको नाम लिखूंगा उस सारे बच्चे को उसका जो असाइनमेंट है वो पूरा मेल करके मुझे भेजना है, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशंस मेथड. If you have any questions, you have any doubt, you can ask me in the comments.